Any topic that we discussed till now? किसी को कोई डाउट है बेटे तो हम लोगों ने अब तक पढ़ा है? Now today we will discuss deadlock avoidance technique, or we can say deadlock avoidance algorithm, which bankers algorithm are used. तो हम लोगों ने बेसिक आइडिया बैंकर्स एल्गोरिथम का ले लिया था। वो ये था use for data structure for implementing bankers algorithm, यही था। यहाँ तक हमने कल डिस्कस किया था। Yes, sir. Yes. So first data structure is available, which is a single dimensional array that keeps the number of instances. Yes. Yes. Anyone having any doubt? कुछ बोल रहा था अभी, बताए किसी ने कुछ बोला है? डाउट है या आगे चलूं, कंटिन्यू करूं या कुछ किसी को पूछना है? कोई पूछ रहा था ना। तो available is a single dimensional array that keeps the number of instances of each resource type currently available. So here you can see, let me use the notation. आपने array define किया, array name available R1K, it means K instances of resource type R1 is available. Suppose R1 is a printer. R1 is a printer and K is equal to 10. So 10 instances of printer are available at this particular point of time. ठीक है, clear? Availability meaning clear हुई? Now max is a two-dimensional matrix, or we can say two-dimensional array, where it specifies the maximum number of instances of each resource type that a process can request. तो इसका मतलब क्या है? max P1 R1 is equal to K. इसका मतलब कि process P1 needs K printer or K copies of printer. मतलब क्या? K instances of type R1 resource. Type R1 मतलब प्रिंटर हो सकता है, CPU है, मेमोरी है, नेटवर्क है, हार्डवेयर है, जो भी चीज हो सकती है आपकी। तो K is a number of type R1. ठीक, तो अगर से कोई प्रोसेस है तो हो सकता है प्रोसेस P1 needs K instance of resource type R1, K2 instance of resource type R2, हो सकता है उसको सिस्टम भी चाहिए, प्रिंटर भी चाहिए, दोनों चीज चाहिए होगी। तो उसको कितने सिस्टम चाहिए? मान लीजिए 3 सिस्टम चाहिए होगा, और उसको कितने प्रिंटर चाहिए? 1 प्रिंटर चाहिए। तो मैक्स P1 R1 इक्वल टू 1 एंड मैक्स P1 R2 इज इक्वल टू 2। R2 सपोज सिस्टम आपका है, पीसी है। क्लियर? क्लियर? ओके, नाउ एलोकेशन. So it is a two-dimensional array that specifies the number of instances of each resource type that has been already allocated to the process. तो प्रोसेस ने को कितना मैक्सिमम रिसोर्स चाहिए और उसे कितना मिल चुका है। ठीक है, क्लियर? जैसे आपको लोन चाहिए 10,000 एंड सपोज यू हैव मैनेज 6,000, तो आप एक प्रोसेस है तो आपने 6,000 मैनेज कर लिया है, तो 6,000 इज ऑलरेडी एलोकेटेड टू यू एंड but maximum you need 10,000. Okay, need क्या है? It is a two-dimensional array that specifies the number of instances of each type that process requires for execution. तो कितनी उसको जरूरत है? तो 10 मैक्सिमम चाहिए था, 6,000 उसको मिल चुका है, तो कितनी नीड होगी? 4,000 is required more. Clear है? Yes, all these 4 data structures definitions are clear, or I will explain again. If anyone having any doubt, without any hesitation, let me know. I will explain all these 4 data structures definitions again. राइट है, मैं इसे रिपीट कर दूंगा अगर किसी कोई डाउट हो। अर्पित, अर्पित, यस सर, डाउट है? क्लियर? नो डाउट सर, ओके, आगे चले सर, नहीं डाउट। गो टू द नेक्स्ट पॉइंट.
Banker's algorithm is executed whenever any process put forward the request for allocating the resource. So whenever a new request is placed in a system, so Banker's algorithm is invoked and it is executed to check whether that request is entertained or not. It involves following steps. Step 1. Banker's algorithm checks whether the request made by the process is valid or not. So first of all, it checks valid है या नहीं valid. If the request is invalid, it aborts the request. मान लेते आपके पास 10,000 रुपए हैं बैलेंस, अब किसी ने 15,000 मांग ली, तो फॉर यू दिस रिक्वेस्ट इज नॉट वैलिड. So if the request is valid, then follow step 2. मान ली उसने 10,000 से उसने 8,000 मांग ली. Now you request is valid. You have 10,000 balance surplus amount and 8,000 request 8,000 डिमांड आपके पास आई. Now you check सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, वो फिजिबल है कि नहीं. देने के बाद आप तो बैंकरप्ट नहीं हो जाएंगे, या आपको तो लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ जाएगी 8,000 देने के बाद. उसके लिए स्टेप टू फॉलो करें. A request is considered valid if and only if the number of request instances of each resource type is less than need declared by the processing agent. तो मैंने बताया अभी आपको एग्जांपल दिया 10,000 और 15,000. स्टेप 2. नाउ अगर से रिक्वेस्ट वैलिड है, स्टेप 2 में क्या होगा, Banker's algorithm checks if the number of requested instances of each resource type is less than the number of available instances of each type. तो ये चेक करेगा कि जो रिसोर्स आपने रिक्वेस्ट किया है और जो अवेलेबल है, तो अवेलेबल जो है वो उससे ज्यादा है या नहीं है, या रिक्वेस्ट जो किया वो अवेलेबल से कम है या नहीं. If the sufficient number of instances are not available, it is asked the process to wait longer. वेट कीजिए. If sufficient number of instances are available, it follows step 3. 3 क्या है? Banker's algorithm makes an assumption that the requested resources have been allocated to the process. ये मान के चल रहा है कि मान लिया इसने कि जो रिक्वेस्ट किया गया था रिसोर्स में, रिसोर्स की वो एक्सेप्ट हो गई है, यानी वो एलोकेट हो चुकी. आफ्टर एलोकेशन ऑफ दोज रिसोर्सेज इट विल चेक द स्टेट ऑफ द सिस्टम. तो मैंने कहा था स्टेट क्या होगा, कितना रिसोर्स अवेलेबल है, कितना एलोकेट हो चुका है और कितना और चाहिए होगा, कितना मैक्सिमम है. Then it modifies the data structure accordingly. जो आपने ऊपर पढ़ा है डेटा स्ट्रक्चर. अगर से रिक्वेस्ट क्या हो गई, यहाँ देख, रिक्वेस्ट अगर से एक्सेप्ट हो गई तो अवेलेबल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एलोकेशन बढ़ जाएगा, नीड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. ये तो होगा, है ना. क्यों, मान लेते हैं अवेलेबल आपके पास 10,000 है अमाउंट, इनिशियली यू हैव 10,000 अमाउंट एंड 8,000 की रिक्वेस्ट आई थी हमारे पास, मैक्सिमम 8,000. 6,000 एलोकेट हो चुका है पहले. कितनी नीड है, 2,000 की नीड है. और आपने इसको, सपोज आपके पास 10,000 अमाउंट था और 8,000 की रिक्वेस्ट आई, 6,000 आप दे चुके हैं, और आपको फिर आपने इसको 1,000 और दे दिया या 2,000 दे दिया बचा हुआ, तो क्या होगा, अवेलेबल कितना हो जाएगा, 8,000, और मैक्स तो 8,000 है ही, और लोकेशन कितना हो जाएगा, 8,000. ये कितना हो जाएगा, करेक्ट, क्लियर है. यस. यस सर. भाई आपने 2,000 दे दिया तो इसमें से माइनस हो जाएगा, एलोकेशन में इतना 2,000 ऐड हो जाएगा, और नीड में क्या हो जाएगा, 2,000 माइनस हो जाएगा. आपने अगर 1,000 दिया है, यहाँ कितना हो जाएगा, 9, यहाँ हो जाएगा आपका 7, और यहाँ बचेगा कितना, 1,000. फिर दिस डेटा स्ट्रक्चर्स आर अपडेटेड. हो गया ना अपडेट. अगर से रिक्वेस्ट ग्रांट हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, डेटा अपडेट करेंगे. कैसे करेंगे, यही इसमें आप आगे. इफ रिक्वेस्ट PI इज लेस देन इज इक्वल टू नीड PI, जो रिक्वेस्ट प्रोसेस ने किया है IX प्रोसेस ने, वो उसकी नीड से कम है, तो क्या होगा, वैलिड रिक्वेस्ट है, तो इसको जितनी जरूरत थी उसने मानी और उससे कम मांगी, उससे ज्यादा नहीं मांगेंगे.
इफ रिक्वेस्ट पी इज इक्वल टू अवेलेबल, अगर से जो रिक्वेस्ट किया गया है वो रिसोर्स अवेलेबल है, तो अवेलेबल क्या हो जाएगा, अवेलेबल इज इक्वल टू अवेलेबल माइनस पी आई, यानी अवेलेबल से माइनस हो जाएगा, एलोकेशन में प्लस हो जाएगा, एंड नीड में से क्या हो जाएगा, क्लियर, यस, दिस सोर्स कोड pseudo कोड इज क्लियर नॉट, बताइए, फर्स्ट वन चेक टू वैलिड, मान लेते हैं आपको नीड है 2000 की, आपने रिक्वेस्ट कितने की कर दी, 5000, क्लियर, सपोज Yes, sir. आपने रिक्वेस्ट 500, नाउ दिस कंडीशन सेटिस्फाइड, तो कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा, अवेलेबल में आते हैं, अवेलेबल में आपके पास कितना है, 100 रुपए, तो चेक किया अवेलेबल, रिक्वेस्ट पी लेस देन अवेलेबल, तो 500 से लेस देन है, नहीं है ना, तो क्या होगा, ये चीज होगा ही, अब मान लेते हैं आपके पास अवेलेबल कितना है 1000, देन यस 500 इज लेस देन 1000, देन अवेलेबल कितनी हो जाएगी 500, 1000 मान लेंगे, यहाँ ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं 2000, तो कितना हो जाएगा अवेलेबल 300, लोकेशन कितना हो जाएगा, जो भी आपके पास पहले से था, जो पहले से था ये ऐड हो जाएगा 500, नीड में कितना हो जाएगा, आपको जितनी नीड थी उससे 500 माइनस हो जाएगा, क्लियर, यस बेटे, हाँ है ना, यदि कुछ बोलिए तो, हाँ क्लियर है सर, नहीं क्लियर है तो समझाइए, Yes, तो खामोश बैठे रहेंगे तो कैसे काम चलेगा, करिश्मा, करिश्मा, ऑनलाइन क्लास में ये परेशानी होती है, सब लोग खामोश बैठे होते हैं ना, कोई बोलना नहीं चाहता, यस सर, क्लियर है ये, यस सर, ऑनलाइन में ना दोनों तरफ से रिस्पॉन्स सभी समझ में आता है, मैं पढ़ा रहा हूँ कि नहीं एक पढ़ा बार रहा हूँ, रिपीट कर दीजिए। तो स्टेप 3, अगर से इफ रिक्वेस्ट इज ग्रांटेड देन ऑल द डेटा स्ट्रक्चर जो हमने यूज किया था मैक्सिमम को छोड़ के सारी चीजें क्या होंगी, अपडेट हो जाए, तो अपडेट करने के लिए मतलब फर्स्ट विल चेक दिस वन, दिस इज कंडीशन चेक्स फॉर द वैलिडिटी ऑफ द प्रोसेस, जो प्रोसेस रिक्वेस्ट की है आई प्रोसेस ने, वो वैलिड है कि नहीं वैलिड है, वैलिड है तो कैसे चेक करेंगे, जो उसकी नीड है, जितनी उसको जरूरत है, ये हमने पहले पता कर लिया है, बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस we must know what is the maximum requirement, what is the resource that is already allocated, and what is the maximum resources that is need more, what is the requirement, ये मुझे पता है, अब अगर से उसने रिक्वेस्ट किया जो उसकी रिक्वायरमेंट से ज्यादा है, तो वो वैलिड रिक्वेस्ट नहीं है, तो अगर से वैलिड है देन सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में आ जाएंगे, अगर से वैलिड है तो अब चेक करेंगे आपके पास जो अवेलेबल है बैलेंस, आपके पास जो अवेलेबल है वो जितना डिमांड की गई उससे ज्यादा है, नहीं ज्यादा है, अगर से आपका ज्यादा है बैलेंस, देन यू हैव टू अपडेट ऑल दिस डेटा स्ट्रक्चर, क्लियर, बताएं बेटे, यस, यस सर। ओके, so if the resource allocation state is safe, then process pi is allocated to its resource, however if the new state is unsafe, then pi must wait, ऐसा नहीं कि उसको मना कर देंगे, उसका वेट कीजिए, और इट्स रिक्वेस्ट एंड ओल्ड रिसोर्स एलोकेशन, अगर से अभी हमने क्या किया था, अभी बैंकर्स ने क्या किया था, बैंकर्स ने एलोकेट नहीं किया था, बैंकर्स ने ये चेक किया था, अज्यूम कर लिया था कि वो एलोकेट हो चुका है, एलोकेशन करने के बाद उसने ये चीज अपडेट की, करने के बाद देखा कि नो, ये करने के बाद हमारा सिस्टम कहाँ चला जा रहा है, अनसेफ सिस्टम चला जा रहा है, देन ओल्ड रिसोर्स एलोकेशन स्टेट का इससे पहले जो थी हमारी, इससे पहले स्टेट हमारी क्या थी, S1 SI थी, अब हमने रिक्वेस्ट ग्रांट कर ली, अभी ग्रांट नहीं किया, हमने एज्यूम किया है ना, ग्रांट एज्यूम करने के बाद हमने क्या किया, स्टेट को चेंज किया है, अब हमने दिस स्टेट इज सपोज अनसेफ, क्या करेंगे, रीस्टोर, बैक ट्रैक कर, फिर यहाँ से आ, क्लियर, और उसको कह देंगे वेट कीजिए, अभी आपको हम दे नहीं पाएंगे पैसे, ठीक है, बिकॉज आफ्टर गिविंग दिस अमाउंट हम उस पोजीशन में आ जाएंगे कि हमको लोन लेना पड़ेगा या हैंग डेडलॉक हो जाएगा, ठीक है, दिस इज
Banker's algorithm, step 1 again valid or not valid. If it is valid, then go to step 2 to check करेगा sufficient amount है कि नहीं है. sufficient amount नहीं है तो वेट करने को कहेगा, अगर से है तो फॉलो स्टेप 3 स्टेप 2 में कहेगा. तो assumption क्या है, क्या क्या इसमें यहाँ पर assumption लिखा हुआ है. Makes an assumption that the request resource has अभी एक्चुअल में ग्रांट नहीं हुआ है, उसने assumption मान के अपडेट किया अपने स्टेट को और फिर चेक किया अपडेटेड स्टेट, अगर सेफ है तो ठीक है, अदरवाइज. नाउ लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दिस algorithm with an help of example numerical. Okay, let me example 1. A single processor system has three resource of type x, y and z. तो मान लेते हैं एक प्रिंटर है, y स्कैनर है, z क्या है, z मान लीजिए आपका रैम है, सपोज दैट इट इज रैम, कुछ भी हो सकता है x y z, which are shared by three process. तो तीन प्रोसेस हमारे पास है, तीन टाइप के रिसोर्स. देयर आर 5 यूनिट ऑफ ईच रिसोर्स. तो हमारे पास प्रिंटर 5 है, स्कैनर 5 है और रैम भी 5. या सिस्टम मान लीजिए z सिस्टम 5. Consider the following scenario where the column alloc denotes the number of units of each resource type allocated to each process. तो allocation क्या डिनोट कर रहा है हमारे पास, allocation डिनोट कर रहा है कि P नॉट के पास 1, हम क्या मान लेते हैं, x जो है हमारा प्रिंटर है, y स्कैनर, z हमारा मान लेते हैं PC. ठीक है, तो P नॉट इज हैविंग 1 प्रिंटर, 2 स्कैनर एंड 1 PC. P1 के पास क्या है बताइए. यस श्वेता बताया बेटा, P1 के पास क्या है, मैंने बताया P1 के ओके 0 स्कैनर और 1. यस, सिमिलरली P2. तो दिस इज द कॉलम alloc डिनोट. ठीक, कॉलम रिक्वेस्ट क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ यूनिट्स की जो टाइप रिक्वेस्टेड बाय प्रोसेस, ये उनको चाहिए होगा. तो P नॉट इज हैविंग 1 प्रिंटर एंड इट इज नीडेड 1 मोर प्रिंटर. इसको एक प्रिंटर और चाहिए. ठीक है, और नो स्कैनर एंड 3 मोर पीस. P1 को भी क्या चाहिए, कोई प्रिंटर नहीं चाहिए, 1 स्कैनर एंड 2 मोर पीस. P2 1 प्रिंटर, 2 स्कैनर एंड नो पीस. क्लियर. तो ये सिनारियो है. तो क्वेश्चन क्या है हमारा, नाउ अवर क्वेश्चन इज इन each resource type requested a process in order to complete the execution. What is the which of these process will finish last? तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सी ऐसी प्रोसेस सबसे लास्ट में फिनिश हो. तो अगर से पहले P नॉट एग्जीक्यूट होगी, P1 होगी, P2 लास्ट में आ जाएगा. बट P2 पहले हो जाती है, P1 बाद में, P नॉट लास्ट. हो सकता है P नॉट पहले हो जाए, P2 पहले हो जाए, P1 बाद में हो जाए. तो मैंने बताया कि डेडलॉक क्या है हमारा, ये जो बैंकर सर्किट में शेड्यूल बनाया किस ऑर्डर में प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है जिससे डेडलॉक हैपन ना हो. ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, कौन सी प्रोसेस है जो सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होगी. ये सब क्वेश्चंस गेट में भी आते हैं, जो एमसीए में है वो इसको ध्यान दें. इस तरह के क्वेश्चन 2 मार्क्स के 4 मार्क्स के गेट में आते हैं. ठीक है, क्लियर. यस सर. तो एलोकेशन मैट्रिक्स आई नो. रिक्वेस्ट मींस जो कितनी नीड कितनी है, रिक्वेस्ट इक्वल टू व्हाट, नीड. ठीक है, दोनों सेम है. क्लियर. so now let me go to the next point. As per the question, total resource of x y z कितना है बताइए. 5 5 5 दिया है ना हमको, यहाँ पर कितना गिवन है, 5 यूनिट गिवन. तो हमने यहाँ पे कर दिया. टोटल एलोकेशन कितना हो जाएगा, तो x का कितना एलोकेट हो चुका है देखिए, 2 + 2 + 1 5. ठीक है भाई, प्रोसेस P नॉट के पास एक प्रिंटर है, P1 के पास 2 प्रिंटर है, P2 के पास 2 प्रिंटर है. कितने प्रिंटर एलोकेट हो चुके हैं, 5 हो चुके हैं, Y 4 एंड Z 3. भाई चीज 5 4 3
क्लियर? Yes, sir. नाउ अवेलेबल कितना बचेगा आपके पास? तो क्योंकि आपके पास 5 थे और एलोकेशन आप पहले से कर चुके हैं सिस्टम में, तो 5 टोटल माइनस टोटल एलोकेशन कितना हो जाएगा? 0 1 2। So now you have 0 printer, 1 scanner and 2 PC. This is the available resource. अब इस अवेलेबल रिसोर्स से आप चेक करेंगे कि आप पहले किसकी रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई करेंगे। तो देखिए, विद द इंस्टेंसेस अवेलेबल currently, only the requirement of process P1 can be satisfied. क्यों? P1 ने कितना मांगा? देखिए 0 1 2 है ना। P1 का कितना है? 0, 1, 2। इट मींस नो प्रिंटर, 1 स्कैनर, 2 पीसी। तो 0 1 2 हमारे पास अवेलेबल भी है ना। यस। Yes, sir. तो at this point of time we cannot satisfy what? P0 and P2, because P0 require one printer and P2 also require one printer, but at this point of time we don't have any printer available. Clear? कैसे Yes, थे? sir. तो अगर से प्रिंटर अवेलेबल नहीं है तो बाकी चीजों को हम क्या चेक करें? तो हम कर ही नहीं पाएंगे। हो सकता है उसको स्कैनर अवेलेबल हो और पीसी भी अवेलेबल है, बट प्रिंटर अवेलेबल नहीं, तो वी कैन ओनली सेटिस्फाई, इसको कर पाएंगे अभी हम, P1 को कर पाएंगे। तो सो प्रोसेस P1 इज एलोकेटेड द रिसोर्स। तो प्रोसेस P1 को हमने रिसोर्स दे दिया, तो हमने P1 को 0 1 2 दिया। 0 1 2 हमने किसको दिया? P1 को। सपोज यहाँ P1 को दिया हमने, तो 0 1 दिया हमने, तो P1 ने अपना काम किया होगा, क्यों बेटे? है ना। नाउ P1 is not waiting, P1 is doing its own work. After completion of its work, तो P1 ने कितना रिसोर्स रिलीज किया होगा? तो 2 पहले था उसके पास, प्लस 0 कितना हो जाएगा? 2 + 0 2, 0 + 1 कितना हो जाएगा? 1, 1 + 2 3। इसका मतलब है जो उसके पास पहले से एलोकेट था और जो उसने रिक्वेस्ट की थी, उन दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स हो जाएगा। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आफ्टर P1 request is satisfied, then P1 starts its execution, and after completion of its job, P1 release all these resources. तो जब रिलीज करेगा तो 2 पहले से लिए हुए था और 0 पहले से उसको मिला, तो 2 का 2 ही रह जाएगा। इसके पास स्कैनर 0 था और पहले एक इसको अभी दिया गया, तो कितना 1 हो जाएगा, तो 2 1 3। तो कितना हो जाएगा हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स? 2 1 3। वही देखिए मैंने किया है। क्लियर? Yes, Yes. sir. Yes, sir. प्लीज फॉलो स्टेप बाय स्टेप। एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप करना है क्वेश्चन आप। नाउ स्टेप 2, नाउ वी हैव अवेलेबल 2 1 3। तो अब हम इसको कर सकते हैं सेटिस्फाई 2 1 3 से, बताइए। Sir, P0 को. 2 1 3 2 1 3। हाँ देखिए, इसको नहीं कर, चूंकि यहाँ पे क्या 2 चाहिए होगा, अब हमारे पास बनी है, ये ओनली 1 स्कैनर, तो पिन आउट कर सकते। तो पिन आउट किया हमने, तो पिन आउट ने क्या करेगा? पिन आउट भी अपना रिक्वेस्ट रिलीज कर देगा। 2 1 3 + 1 2 1 कितना हो जाएगा? 3 3 4। दिस वन इज द जितना पिन आउट क्लियर? यस। सीक्वेंस क्या हुआ? P1 पिन आउट, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन। गेट में ये भी क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन, एंड लास्ट में कौन सा एग्जीक्यूट हुआ हमारे पास? P2। दिस इज आवर आंसर। क्लियर? Yes, sir. एनीवन हैविंग एनी डाउट?
बेटा नेक्स्ट एग्जांपल मैं बहुत ही स्पीड से करूंगा, मैं तो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा नहीं आप लोगों को, क्योंकि मैंने एक एग्जांपल बहुत ही क्लियर से स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। मैं फिर से बता दूंगा, आई विल रिपीट अगेन इफ यू हैव एनीवन हैविंग एनी डाउट। जीशु, जीशु वाशने, जीशु, जीशु इज इट क्लियर? बस बैटरी क्लास ज्वाइन कर लिया है और पता है नहीं। देखते हैं बेटा एग्जाम में आप लोग क्या क्या छोड़ के आते हो, फिर इस तरह क्वेश्चन आ जाएगा। एस एम यासीन, एस एम यासीन, सैयद मोहम्मद यासीन, शगुफ्ता, सर। यस सर। हेलो। यस सर। ओके नाउ लेट मी मूव टू द सर नेक्स्ट। हाँ यस यस सर क्लियर है। सर सर अगर P1 जैसे एग्जीक्यूट हो गया है और P नॉट और P2 के लिए मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो P नॉट पहले एग्जीक्यूट करेंगे, P2 अब सीक्वेंस से चलेंगे, फिर P नॉट पहले करें। in this condition you can follow FCFS, अगर से अराइवल टाइम चेक कर लीजिएगा, ठीक है? ओके सर। अगर से अराइवल टाइम भी सेम है तो क्या चेक करेंगे फिर? आईडी चेक करेंगे। प्रोसेस आईडी। आईडी तो यूनिक है ना, ऐसा नहीं कि दो प्रोसेस सेम आईडी होगी, उसको फॉलो कर लीजिए, ठीक है? ओके यस सर। यस सर। ये हो गया हमारा एग्जांपल 1। P1 not P2 use all the process to be executed, तो सिस्टम यूजिंग सेफ स्टेट उसको प्रोसेस को एलोकेट कर देगा। वो सेफ्टी एल्गोरिथम, तो सेफ्टी एल्गोरिथम क्या करती है? बिफोर यूजिंग बैंकर्स एल्गोरिथम वी नीड सेफ्टी एल्गोरिथम। सेफ्टी एल्गोरिथम पहले यूज करेंगे चेक करने के लिए सिस्टम सेफ है कि नहीं सेफ। तो टू इंप्लीमेंट सेफ्टी एल्गोरिथम फॉलोइंग टू डेटा स्ट्रक्चर्स आर यूज्ड, वर्क एंड फिनिश। तो वर्क क्या करता है? इट इज ए सिंगल डायमेंशनल एरे that specifies the number of instances of each resource type currently available. It is equal to available, it is equal to available. क्या ऊपर पढ़ा है? फिनिश क्या करेगा? if it is a single dimension, it is a single finish is also single dimensional array that specifies whether the process has finished its execution or not. तो ये चेक करेगा कि फिनिश पी आई। तो मान लीजिए in the above example we have three process P0, P1, P2. So we have finished array corresponding to this process. So we have three process. So the array of dimension 3 is needed. Initially all these values 0 0 0. 0 means it is not finished. अगर से ये फिनिश हो चुकी है तो पहले क्या P1 हुआ था तो 1 को इसको 1 कर देंगे, it means P1 is finished. Then we go for P0 and P2. P0 finished, then 1, P2 finished. तो अगर से corresponding array index 1 है, it means that process is finished, otherwise this process not finished. Yes, clear? यस सर। Yes बेटे। यस सर। So safety algorithm is executed to check whether the resultant state after the allocating the resource safe or not. आपने allocate करने के बाद चेक किया वो safe है कि नहीं safe. तो step 1 क्या है इसमें है? Initially number of instances of each resource type currently available हो गया. All the processes are to be executed. Step 1 data structures are initialized as work is equal to available. तो जो भी available given होगा आपको वो वर्क में इनिशियलाइज कर देंगे. एंड फिनिश आई इज इक्वल टू फॉल्स फॉर आई फॉर ऑल द प्रोसेस. अगर तक वो 3 है तो आई इक्वल टू 0 1 2. इफ प्रोसेस है 5 तो 0 1 2 3 4. सेफ्टी एल्गोरिथम लुक्स फॉर एन अनफिनिश्ड प्रोसेस whose need is less than or equal to work. मतलब जिसकी रिक्वायरमेंट क्या है? लेस देन है या उसके इक्वल टू है नीड के अवेलेबल जो हमारे पास. तो जो प्रोसेस फिनिश नहीं हुई है it means it will check the array. If the corresponding value of the array is 0, then it will check this algorithm. Step 2 में क्या होगा? Finds an index I such that finish I is equal to false and need of I is equal to work. क्या अवेलेबल है तो अवेलेबल चेक करेंगे. वर्क नीड जो चाहिए वो अवेलेबल के
से कम है कि नहीं कम। अगर से मान लेते हैं फिनिश आई फॉल्स है, जैसे हमने यहाँ पे कहा था अभी, पी नॉट पी वन पी टू। तो हमने यहाँ पे क्या किया, पहले पहले क्या एग्जीक्यूट हुआ था हमारे पास, इनिशियली ऑल 0 0 0 0 0। तो फर्स्ट P1 is executed, ये हमने 1 कर दिया। नाउ सेफ्टी एल्गोरिथम कम्स इनटू प्ले, देन इट चेक द फर्स्ट दिस एरे। तो इसने चेक किया ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स। तो पहले इसने क्या चेक किया, P0 के लिए चेक किया। तो P0 के लिए चेक किया कि जो नीड थी P0 कि वो वर्क यानी अवेलेबल से लेस देन है कि नहीं, अगर से लेस देन है तो आगे जाएगी, अदरवाइज नहीं जाएगी। ठीक है, मान लेते हैं ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो क्या करेगा, P1 चेक करेगा, P1 इज ऑलरेडी एक्सिक्यूटेड बिकॉज फिनिश आई क्या ट्रू है, तो P2 पे चला जाएगा, P2 चेक करेगा, P2 के लिए अगर से ये क्या है फॉल्स है, सेटिस्फाइड ट्रू, देन ये भी अगर सेटिस्फाइड हो गया तो आगे की क्लियर है। यस, यस सर। दिस इज द वे हाउ सेफ्टी एल्गोरिथम वर्क। Yes, sir. If such process exists, then step 3 is followed. Otherwise, step 5 is followed. Step 3 क्या है देख लेते हैं। After finding the required process, safety algorithm assume that the required resource are allocated to the process. The process runs, finishes its execution, and resource allocated to it gets free. Free वाले P1 को मिला, P1 ने free कर दिया, तो वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क प्लस एलोकेशन एंड फिनिश इक्वल टू हो जाएगा। तो वहां पे P1 P0 इनके पहले क्या एक्सिक्यूट हुआ था, P1, तो ये 1 हो चुका था, ये 0 था, ये 0 था। ना उसके बाद क्या P0 एक्सिक्यूट हुआ, इसने इसको 1 कर दिया, और जो रिसोर्स अवेलेबल था उसमें क्या हो गया, अवेलेबल इक्वल टू अवेलेबल प्लस एलोकेशन, यहाँ क्या कर दिया 1 कर दिया, देन अगेन फॉलो करेगा। ठीक है, स्टेप 4 लूप ऑफ स्टेप 2 एंड स्टेप 3 इज रिपीटेड। तो ये फॉलो करते जब तक क्या हो जाए, जब तक ये पूरा पूरा 1 ना हो जाए, जब तक ये पूरी वैल्यू 1 ना हो जाए। ये 1 हो गया, ये 1 ये 1, तो क्या हो जाएगा, सब 1 हो गया, तो आगे बढ़ेगा ये लूप हमारा। ये सब इनको इंप्लीमेंट करके चेक कर सकते हैं। स्टेप 5 इफ ऑल द प्रोसेस कैन बी एक्सिक्यूटेड इन सम सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस हो, जैसे यहाँ पे क्या था P0 सॉरी P1 P1 P0 P0 P1 P2, ये सीक्वेंस हमारा था पिछले एग्जाम्पल। ठीक है, देन द सिस्टम इज सेड टू बी सेफ स्टेट। अगर से सबकी वैल्यू 1 हो चुकी है तो सिस्टम हमारा सेफ है। इफ फिनिश आई बिकम्स ट्रू फॉर ऑल आई, देन सिस्टम इज इन सेफ। ठीक है, इज क्लियर दिस Yes. सेफ्टी एल्गोरिथम। नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस विद a real life example. An operating system use the banker's algorithm for deadlock avoidance when managing the allocation of series resource type X, Y, Z and three process P0 P1 P2. Table given below represent the current system state. तो अभी हमारे पास ये system state हमारे पास है। Here the allocation matrix shows the current number of resource of each type allocated and process, and max matrix shows the maximum number of resource of each type required by the process in system. ये हमको हुआ है। तो allocation कितना हो चुका है, P0 का 0 0 1 और मैक्सिमम कितना चाहिए 8 4 3। तो रिक्वायरमेंट कितनी हमारे पास, नीड कितना हमारे पास, नीड कितना जाएगा 7 4 और क्या आएगा 2, यहाँ कितना हो जाएगा 6 - 3 3, 2 - 2 0 एंड 0 - 0 0, 3 - 2 1, 3 - 1 2, 3 - 1। क्लियर है, ये तो हो गया नीड। सर सर P0 8 4 वापस 3 आएगा, सर 8 होगा। 8 4 2। हाँ 8 4 सॉरी 8 - 0 8 4 2। ठीक है, यस नॉट क्लियर। सर तो ये नीड होगी हमारे पास। There are 3 unit of type X, 2 unit of type Y and 2 unit of Z type are available. तो क्या available क्या हमारे पास है, how I have available क्या है 3 2 2, ये available। ठीक है,
द सिस्टम इज इन करेंटली सेफ स्टेट। सिस्टम क्या है हमारे पास? सेफ स्टेट। कंसीडर द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट रिक्वेस्ट फॉर द एडिशनल रिसोर्स। ये गिवन है आप, ठीक है, दिस वन इज गिवन, ठीक। सिस्टम क्या है अभी हमारी? सेफ है। अगर से हमारे पास ये अवेलेबल रिसोर्स है और ये एलोकेशन हमारे पास है, दिस एलोकेशन वी हैव, दिस एलोकेशन वी हैव एंड दिस अवेलेबल रिसोर्स है, तो अभी नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सिस्टम इज सेफ, इट इज गिवन, ठीक है। अब हमको चेक करना है कि नेक्स्ट रिक्वेस्ट जो आ रही है वो सेफ स्टेट में ले जाएगी कि नहीं ले जाएगी। तो उसमें क्या होगा? we use eraser। तो क्या है? रिक्वेस्ट वन, ये कह रहा है कि रिक्वेस्ट वन क्या है? पी नॉट रिक्वेस्ट 0 यूनिट्स ऑफ वाई एंड 2 यूनिट्स ऑफ जेड। एंड P1 के पास क्या आया है? P1 को 2 प्रिंटर चाहिए और 0 स्कैनर चाहिए और 0। तो क्वेश्चन इज वेदर द रिक्वेस्ट 1 और रिक्वेस्ट 2 कैन बी परमिटेड और नॉट। रिक्वेस्ट 1 और रिक्वेस्ट 2 परमिट हो सकती है नहीं हो सकती है, हमको बताना है, ठीक है। यस, क्वेश्चन इज क्लियर। Yes, sir. अभी हमारे पास सिस्टम सेफ स्टेट में है। अब हमें ये 2 रिक्वेस्ट आए हैं, मान लेते बैंक ने बहुत लोन पहले से दे रखे हैं और उसके बाद ये सारी चीजें आई, तो क्या होगा उस कंडीशन में?